Hello everyone, I am Dr. Kiranmayi Koppisetti. I have secured All India rank of 56 in UPSC Civil Services Examination of 2021. This was my fourth attempt. I had qualified prelims thrice. So in 2018 I cleared my first prelims, and in second attempt also I cleared prelims. In third attempt I couldn't clear prelims. So let us discuss about prelim strategy, why I couldn't clear prelims in the third attempt and how I could overcome the problems that I encountered during the third attempt, so that I could cover up in my fourth attempt and secure this rank. So when I started my preparation in 2017, I started with the basic books. So reading basic books is a must for prelims, and while doing the basic books, after completion of each basic book, start with a basic test. For example, Vision IAS booklets I used to get, and I used to do them. While doing them, it is not just that you assess your marks and you analyze yourself. You have to see question by question why you have done that question right, and why, if at all you have done a question wrong, why you have done it wrong. So question by question analysis is the most important part of any examination, and more so for prelims, so as to identify why you have committed some mistake if you have, despite reading that topic. There are certain number of times where we realize that we know the topic, we have read the topic, but still we have done the mistake. But that we will understand the reason for it, we will understand only when we have evaluated it, why that mistake. Sometimes we do certain systematic mistakes, like not reading the no, or not reading word by word, missing some words. So these are some of the mistakes during prelims question reading which we do, which we will identify only by evaluation, question by question. Don't never evaluate yourself by the marks that you're getting. Evaluate your strengths by seeing the questions. So this was something which I did in my first and second attempts. In my third attempt, the reason I couldn't clear prelims, I had analyzed after giving my prelims. This third attempt was during COVID. In 2020 it was COVID times, and in my second attempt when I had given interview, it was in the month of February. So after February I was free for 6 months, during which time I did not keep myself updated with the happenings because of family responsibilities that I had, because of which I had a gap of 6 months. So I did not prepare either for mains or prelims during those 6 months. And when the results of second attempt came on August 4th, I had exactly 2 months left. I had secured a rank of 633 in my second attempt, but it was a deterioration from the first time I got 573, second time I got 633. So I was a little disappointed. I had to start the preparation again. I had 2 months of time for prelims. It was a sufficient enough time for prelims. But this time around, what the mistake I did was, I was relatively depressed or फिर underconfident I would say. ये इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा रैंक थोड़ा कम आया था, and I wanted to follow topper strategy. It is always good to follow topper strategy, but with योर ओन एडिशंस. मतलब अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होना बहुत ज़रूरी है. टॉपर स्ट्रैटेजी उतना ही लेना है जितना हमें यूज़फुल हो. वी ऑल्सो नीड टू नो आर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सम टॉपिक्स वीक थे. हिस्ट्री में मैं बहुत वीक थी, आर्ट एंड कल्चर में वीक थी. These areas were very increasingly being asked in the prelims. For example, ancient medieval का वेटेज जो था पहले उतना नहीं होता था, बट अभी उसका वेटेज बढ़ गया है. एंड आई डिड नॉट फोकस ऑन, बाय नॉट फोकसिंग ऑन द स्टैटिक पार्ट, व्हाट आई डिड वाज, मैंने मार्केट से करंट अफेयर्स के बुकलेट्स ले लिए थे और यही पढ़ने लगी. तो 2 महीनों में आई वुड से 40 days आई स्पेंट ऑन रीडिंग करंट अफेयर्स. While after writing the exam, I realized that static was more important and static is more predictable. Static से question आता है तो it is more certain that you will be doing the paper, you will be able to answer the questions. But prelims, जितना भी आप prelims में जितना भी आप current affairs का preparation करो, questions कहीं और से आ जाते हैं and you are not sure whether you are able to attempt the question correctly or not. So I would suggest focus more on the static part of it. This was one thing which I realized that was a mistake during the third attempt. और एक mistake मुझे ये लगा था कि मैंने
पिछले सालों की क्वेश्चंस जो है उसकी एनालिसिस अच्छे से नहीं किया है, उससे पीपल जस्ट थिंक दैट द क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड, व्हाई शुड आई डू प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, नॉट डूइंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो फर्स्ट टू गेट द आइडिया ऑफ seeing that getting the topics from which questions are being asked, ये एक important चीज़ है previous years questions करने के लिए. Second thing why we need to do previous years questions is उस topics में भी कैसे करते हैं, मतलब कैसे questions पूछे जाते हैं, what are the themes, मतलब वही topic में themes क्या है ये भी हमें पता चल जाता है previous years question से. Third important thing is if you have observed फ्रॉम द ऑप्शंस, मतलब पिछले सालों में दिए गए क्वेश्चन के ऑप्शंस को क्वेश्चंस के रूप में नेक्स्ट ईयर दिया जाता है. सो इफ़ यू डू द प्रीवियस 10 years क्वेश्चंस यू विल हैव एन एज ऑफ अराउंड 10 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट preliminary exam that you are giving. So I think one needs to do previous years questions, analyze the areas from which the questions are being asked, also analyze the options, and also apart from doing the previous years questions, अभी मैंने दो बोला है, static should be your foundation for preliminary examination, current affairs you should do but don't overdo. Second thing is previous years questions. Third thing I want to highlight is that UPSC conducts various exams, various other exams in that year. तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डू देम ऑल्सो बिकॉज इट इज़ फ्रॉम दोज एरियाज फ्रॉम विच यूपीएससी, देर आर सर्टन एरियाज फ्रॉम विच यूपीएससी यूजुअली आस्क क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल CAPF का एग्जाम होता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम होता है, इसमें से जनरल स्टडीज़ के जो भी क्वेश्चंस हैं वो पिकअप करके वो भी आप कीजिए, उस एरियाज़ को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए. तो दीज आर सर्टन स्ट्रैटेजीज विथ विच यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर्स बाई 20-30 मार्क्स, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो बढ़ेंगे इन स्ट्रैटेजीज से. तो आई थिंक दीज the things which helped me improve my score very much in the fourth attempt during which I secured this rank. पहले दो बारी में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स किए थे. क्वेश्चन पेपर्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सिस्टमैटिक थोड़े मिस्टेक्स करते हैं. हम लोग अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करना है ये पहचानने के लिए हमें ज़्यादा टेस्ट देने होते हैं, मॉक टेस्ट. अराउंड 50 मैंने किया है, मैंने तो उससे ज़्यादा नहीं किया, बट पीपल डू 80 to 100 ऑल्सो. 50 से ज़्यादा तो मैंने नहीं किया था, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इवन इन दैट इज़ एनालाइजिंग ईच क्वेश्चन इंडिविजुअली, क्यों सही किया क्यों नहीं किया. तो ये करने से हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना होता है. तो वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, ओनली देन वी विल बी एबल टू गेट बेटर स्कोर्स. हम ऐसे ही पढ़ते जाएं तो इम्प्रूवमेंट कभी भी नहीं होगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, कहाँ कहाँ आपके वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको ओवरकम करना होगा, और अपने स्ट्रेंथ्स को भी आइडेंटिफाई करना है ताकि वी मेंटेन दो स्ट्रेंथ्स सो एज टू रिटेन द स्कोर्स दैट वी वर गेटिंग. और बढ़ाने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए वीकनेसेस को ओवरकम करना होगा. सो आई थिंक दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्टिक टू स्टैटिक्स. सेकेंड थिंग, डू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is doing other tests of UPSC. So apart from these three things, I would also like to suggest the aspirants to do one thing. वो ये है कि sources, अपने resources जो होते हैं prelims के लिए बहुत ज़्यादा मत रखना. You are doing already a workup कि previous years questions कर रहे हो, static अपना अच्छे से बना रहे हो. So static अच्छे से कैसे बनेगा? For this you have to go through proper standard textbooks जो हम पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री के लिए NCERT टेक्स्ट बुक्स, ओल्ड NCERT से मैंने पढ़ा है, और जोग्राफ़ी के लिए भी NCERTs ही मेरा बेस था. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत. इकोनॉमी के लिए आई यूज़ टू लिसन टू learningspacedigital.com. learningspacedigital.com इज़ अ वेबसाइट विच इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म बट बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है. दिस आई यूज्ड वेरी vigorously in my attempts when I gave, and I think it has helped me get confidence for giving the exam. तो इसमें मैंने इकोनॉमी के क्लासेस किए थे. तो I stuck to the notes because I did not want to venture into new book. और एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS से किया था. साइंस एंड टेक्नोलॉजी I only did current affairs. तो जो भी बुक मैंने लिया था
वही बुक बार बार रिपीट करने में हेल्प होता है. इन माई फर्स्ट 2 attempts what I did was I used to go through whichever material I used to get. आजकल का प्रॉब्लम ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है. वी आर गेटिंग सो मच ऑफ कंटेंट फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस. एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एक मटेरियल दे देता है, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट दूसरा मटेरियल दे देता है. ये सारा फ्री में अवेलेबल हो जाता है. एंड व्हेन इट इज़ अवेलेबल फ्री टू अस वी आर टेम्प्टेड टू रीड. और पढ़ाई में अच्छा मन लग जाता है तो पढ़ने लगते हैं. बट एट द एंड ऑफ इट बिफोर द एग्ज़ाम वॉट यू रिवाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये तब ही कर सकते हो जब यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर रीडिंग. तो कीप योर रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड फॉर वॉट एवर स्टेज ऑफ द एग्जाम इट इज़. कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड. और इस रिसोर्सेज को भी ऐसा पढ़ना चाहिए हमें कि पहली बार पढ़ लिया, दूसरी बार भी अगर चाहिए तो और एक बार भी बुक खोल के पढ़ लिया. बट तीसरी बार से हमें ये करना है कि बिना बुक खोले वी हैव टू एक्टिवली रिकलेक्ट. दिस वॉज अ मिस्टेक विच आई डिड इन माई थर्ड अटैम्प्ट. यहाँ पे मैंने बस पढ़ा बुक खोल के पढ़ते गई ये सोच कर कि प्रिलिमिनरी तो ऑप्शंस तो सामने ही होंगे, तो इवन इफ़ आई हैव अ क्लू आई विल बी एबल टू डू द आंसर करके. व्हाट डू वी मीन बाय रिविजन इज़ नॉट रिपीटेड रीडिंग ऑफ द टॉपिक्स. रिपीटेड रीडिंग से फ़ायदा नहीं होगा. यही मेरा गलती था थर्ड अटैम्प्ट प्रिलिम्स करते समय. आई वॉज गोइंग ऑन रीडिंग टॉपिक बाई टॉपिक फ्रॉम दी करंट अफेयर्स बुकलेट्स, लेकिन मैंने उसको याद करने की कोशिश नहीं किया था. बट व्हाट प्रीलिम्स एक्सपेक्ट्स इन यूपीएससी इज़ यू शुड नो द कंटेंट डीपली. अच्छे से पता होना चाहिए. स्पेशली द स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जब पता होता है तभी हम कर सकते हैं. यू कांट जस्ट सी द ऑप्शंस एंड मेक अ गेस. हाँ, थोड़ा there are some intelligent techniques that people use, but I think UPSC is bypassing those techniques also, so as to make the competition more and more tougher. So you need to know the content thoroughly. और ये कैसे होगा? जब you are actively recollecting the thing. तो रिविजन का मतलब ये नहीं है कि बुक को बार बार पढ़ो. आप बुक बंद करके एक्टिवली रिकलेक्ट करने की कोशिश करो कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें याद है, क्या क्या याद नहीं हो रहा है. जो भी याद नहीं होता है एक बार बुक में फिर देख लेना, उसके बाद फिर से एक्टिव रिकलेक्ट करना. सो एक्टिव रिकलेक्शन इज़ समथिंग विच आई वुड सजेस्ट नॉट ओनली फॉर मेंस बट ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के लिए भी ये ज़रूरत है. तो एक्टिव रिकलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन. हम लोग रिपीटेड रिविजन से रिपीटेड रीडिंग ऑफ द बुक रिपीटेड रीडिंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज रिविजन. एक्टिव रिकलेक्शन विल बी कॉल्ड एज रिविजन. तो आपको रिविजन जब करना है, एक्टिव रिकलेक्शन करना है, वो भी इमीडिएटली द नेक्स्ट डे यू हैव टू रिवाइज एक बार, और एक बार एक हफ्ते के बाद रिवाइज़ करना है. नहीं तो 50% और 70% ऑफ व्हाट वी हैव रेड इज़ लॉस्ट इफ़ वी हैव नॉट रिवाइज्ड इट इन नेक्स्ट 1 वीक. तो ये रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपार्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग आवर रिसोर्सेज. तो ये सारे करते हुए at least 50 mock tests 2 to 3 months before prelims you have to give exclusive time for prelims. और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से करना है. स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस देना है. यूपीएससी के दूसरे पेपर्स जो होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम के पेपर्स जो होते हैं, ये भी करना है. आई थिंक दीज आर द टेक्निक्स बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर यूपीएससी स्कोर्स. आई थैंक DKT फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द एस्पिरेंट्स रिगार्डिंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन.